And we are ready to start a wonderful session. And what an irony, we are doing time management, and unfortunately, I got delayed by 5 minutes. But चलता I है was मैडम. prepared. Yes, So yes, no issues. even I mean, now I was under the impression that we are starting half an hour later, but I was so prepared that immediately it's not much of a delay. So Yes, yes. So yes, yes. understanding time management. So what is any participant, anybody can, yeah, good afternoon. So could anybody share what is your understanding of time management? Or why should we learn? What is management? What all do we manage in our lives? We manage our finances, we manage relationships, we manage our workplace, we manage our families, we manage so many things. Why should time, how, what strategies can we adopt to manage time? I'm sure you must have heard of it, you must have read about it, you may have delivered lectures on it, you may have spoken to your students about it, to your colleagues about it. So what is this term time management? I want to share with you. Planning and Anybody, you can take. organizing day-to-day activities. Yeah, Planning absolutely. and Planning and organizing. Yes, I can share my own personal experience with you. When I heard this word for the first time, and I was working with a very esteemed institution, and somehow I would always reach on time or just a couple of seconds before time. And then my principal there told me that Divya, you need to on your time management because you have to be here 5 minutes. And I could manage those 5 minutes for a long time. But then I restarted rescheduling. And as a result, there were so many things which transformed because one understood how to be ahead of time. So we can manage time when we are ahead of time. If time is ahead of us, then things go absolutely mismanaged. We cannot control anything. So let's understand how can we do this. And again, one more thing I want to share. We all have two kinds of skills. One is hard skills, the degree that you, the learned for yourself and what you are actually practicing at your workplace and what you're teaching your students have earned you the. But along with hard skills, the soft skills are very important. So what are these soft skills? Anybody? And why this importance of soft skills? And why they have become so prevalent in today's times. And how do we learn soft skills? Anybody? What is your understanding? Anybody? What is your understanding of soft skills or hard difference between hard skills and soft skills? So I'll share with you. Soft skills are all our behavioral skills. So we learn from each other, the behavior. So hard skills can earn us jobs, recognition, but soft skills take us far because our behavior is what is very, very important. So time management also shows how organized and disciplined we are in our personal lives. So I'm going to start with sharing my PPT here and let me just share my PPT. Just a minute. I'll just share my PPT. So we will understand how are we going to do this session. First, we will understand what is time management, then the challenge we face when it comes to time management, then the solutions we can exercise in our own lives when dealing with time, managing time. And I'm going to make it very interactive, so there are going to be quizzes for you. So be very attentive because right at the onset I'm going to start with a quiz to and so that we can really make it interactive. And then there is another quiz. So if you are
Please pay attention so that you're not missing out on anything, right? So here it is. Can you see my PPT? Yes, ma'am. My PPT is visible? Yes, All yes. right. Ma'am, So we this will is go time with mixed management. language, Hindi and English. हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट की पहले डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है। तो जैसे मैम ने बताया कि ये सारा प्लानिंग से शुरू होता है। प्लानिंग क्या करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 24 आवर्स है सबके लिए। वो हमारे लिए भी है, कोई हमसे ऊपर के लेवल पे कर रहा है उनके लिए भी 24 आवर्स है, प्रधानमंत्री के लिए भी 24 आवर्स है, सबके लिए 24 आवर्स है। बट कोई हमसे कम भी कर रहा है 24 आवर्स में, कोई हमसे ज्यादा भी कर रहा है। तो व्हाट आर द थिंग्स जो हम अपने ध्यान में रख सकते हैं? तो पहले तो डेफिनेशन ही समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग। अब प्लानिंग, क्या चीज की प्लानिंग करनी है? तो प्लानिंग करनी है कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम की, अवेयरनेस के साथ कि मैं इस समय को कैसे व्यतीत कर रही हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स इनएक्टिव होते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इस टाइम पे मेरा वेटिंग पीरियड है, या मेरा कुछ अभी काम करने का मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है, तो ये मेरा पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी हो रहा है। अगर मैं उस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी को भी बाय डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव एक्टिव पीरियड में चेंज कर दूं, तो मेरा कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं उसी में टाइम जाएगा, है ना? टाइम तो कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, पर जब हम उसको कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ यूज करते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसी में मेरी इफेक्टिवनेस बेटर हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, और मेरा जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी असर पड़ जाएगा। So that is why understanding time is very important. Let us now next topic पे हम आते हैं कि challenges क्या है। Is this clear? What is understood by managing time? First of all, planning. प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरा दिन है, आज मेरे दिन में मेरे पास कितने घंटे हैं? एटलीस्ट 16 आवर्स तो हम सबके पास है। 8 आवर्स अगर हमने स्लीप में कर दिए या 10 आवर्स हमने हटा दिए, तो हमारे पास, अगर हमने 10 आवर्स भी हटा दिए तो 14 आवर्स हैं आज मेरे पास, या 12 वर्किंग आवर्स हैं, या 10 वर्किंग आवर्स हैं, जितने भी मेरे वर्किंग आवर्स हैं। What am I going to be doing in those 10 hours? तो अगर मैंने, अब मैं इसी पे आगे प्लानिंग पे भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि प्लानिंग किस टाइप की होती है, और अगर मैं उस प्लानिंग के हिसाब से चल रही हूँ, तो मेरा टाइम जो है वो बेटर यूटिलाइज होगा, और साथ ही साथ हमारी एक्टिविटीज भी बेटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देंगी। ठीक है, तो हम ये जो नेक्स्ट पे आते हैं, कितनी बार चैलेंजेस क्या क्या हो जाते हैं, ये तो डेफिनेशन थी। अब हम चैलेंजेस पे आएंगे, फिर हम सॉल्यूशंस पे आएंगे, और फिर हम उन सॉल्यूशंस को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो कितने बार ऑब्जेक्टिव्स हमारा, मैं तो दिन को प्लान करने बैठ गई। अब मैंने सोचा कि मेरे 10 आवर्स में ये मुझे सबसे पहले करना है, ये मुझे नेक्स्ट करना है, मैंने अपना शेड्यूल बना लिया। बट सडनली क्या हो गया, इंटरप्शंस आ गए, और मेरे ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं थे। दूसरा, मैंने उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया कि पहले क्या मुझे करना चाहिए, नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, वो वहां पर प्रायोरिटाइजिंग नहीं थी। तो प्रायोरिटाइजिंग नहीं थी तो मेरा काम शेड्यूल भी नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो मैंने कहा चलो आज नहीं हो रहा है, मैं कल करती हूँ, उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया मैंने। अब क्योंकि वो कल पे टल गया, तो मेरे को आज भी स्ट्रेस हो गया, आज भी मैं थक गई, और मेरा कल का काम भी आज का काम तो हुआ ही नहीं, वो काम कल चला गया, तो मुझे वो सोच के आज भी टेंशन हो रही है। तो देखिए कितने सारे चैलेंजेस हो गए। नाउ आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम फटीग्ड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, बट ना तो मेरा काम हुआ, ना मेरा प्रोडक्टिविटी हुई, ना मेरी एफिशिएंसी हुई, ना मेरी इफेक्टिवनेस हुई, मेरा पूरा दिन भी चला गया, और नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने अपने सर पे स्ट्रेस पाल लिया।
तो ये मेरे चैलेंजेस बहुत मेजर चैलेंजेस हैं, और इसके कारण हम हमेशा कभी कभी गुस्से में भी रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में भी रहते हैं, अपने आप से नाखुश रहते हैं, क्योंकि हमने वो सेल्फ अवेयरनेस किया था ना कि एक तो आइडियल सेल्फ होता है और एक रियल सेल्फ होता है। तो रियल सेल्फ क्या हो रहा है कि वो चाहता है कि ये काम होने चाहिए थे, आइडियल सेल्फ भी कह रहा है कि ये काम होने चाहिए थे, पर ये नहीं हो पाए। तो somewhere I am unhappy with my own self, and that will affect my intrapersonal talk, क्योंकि मैं अपने आप से कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, माई वर्क इज नॉट कंप्लीट, एंड व्हेन आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, मेरे इंटरपर्सनल, मैं दूसरों से भी उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ बात करूंगी, क्योंकि मेरे को खुद पे गुस्सा आ रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को याद रखिए, बिकॉज हर पॉइंट पे अब एक कुछ क्विज होने वाली है। आर यू ऑल देयर? आप एक क्विज के लिए रेडी हैं सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप क्विज के लिए रेडी हैं तो मैं आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगी। आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू, 2 फॉल्स, ट्रू या फॉल्स या ट्रू या जैसा भी आपको लगे, आपके हिसाब से जो भी आंसर्स हैं अपनी नोटबुक पे लिखिए। फिर हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है? तो सबने इंटरैक्टिव रहना है और सबने इसके आंसर्स रखने हैं, ताकि ये हम इसे कुछ वाकई में सीख पाए। ठीक है? तो फर्स्ट क्विज के लिए हम तैयार होते हैं। Everyone is ready? You can give me a thumbs up, or you can put in the chat section so that I know. हाँ, ready? नोटबुक, पेन, कुछ भी अपने सामने ले रखिए और इनको आंसर करने के लिए तैयार रहिए। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है जो कि चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पैदाइशी इतनी इंटेलिजेंट हूं या इतनी ज्यादा हूं या कम हूं या जैसे भी हूं, बस इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। मैं जैसी हूं मैं वैसी हूं। ये आपको सत्य लगता है या गलत लगता है, आप अपना नंबर पे लिख दीजिए। ठीक है? हाँ, ओके, आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि इंटेलिजेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सब फॉल्स कह रहे हैं। वेरी गुड, बिकॉज वी आर एजुकेटर्स, वी नो दैट इट इज नॉट ट्रू, सो फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इंटेलिजेंस। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स और बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, जितना हम दिमाग का एक्सरसाइज करेंगे। ये सही है या गलत है? बताइए। सही है, बिल्कुल एकदम। सारे एजुकेटर्स हैं तो एजुकेटर्स विल डेफिनेटली बिलीव इन दिस। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब थर्ड चीज है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला रॉन्ग है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आप नई चीजें सीख सकते हैं, पर आप अपने लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को नहीं चेंज कर सकते। फॉल्स फॉर थर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉल्स फॉर थर्ड। और फोर्थ है कि अगर हम नई चीजों को सीखते हैं तो एक्चुअली हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे अब आ गए हैं हम। ट्रू, एब्सोल्युटली। तो सबका यूनिवर्सली ये आंसर है कि फोर्थ वाला सही है। मतलब अगर हम नई चीजें सीख रहे हैं तो हम अपनी इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपके आंसर्स हैं, यहाँ इस स्लाइड पे देख सकते हैं। पहला वाला फॉल्स था, फिर ट्रू था, फिर फॉल्स था, फिर ट्रू था। आप सब ने बिल्कुल सारे सही जवाब दिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, अब एक और क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैलेंट इज समथिंग यू आर बोर्न विथ, नॉट समथिंग यू कैन डेवलप। टैलेंट जिनके पास है उनके पास है, किसी को भी बढ़ाया नहीं जा सकता टैलेंट।
फॉल्स। आमरीन, आपके सबसे पहले क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं, दैट इज सो गुड। यस, टैलेंट कैन बी डेवलप्ड एब्सोल्युटली। तो कैसे? अब सेकंड वाला क्वेश्चन वही आंसर कर रहा है कि अगर हम किसी चीज की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उस चीज का टैलेंट बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है? ये सही है कि गलत है? सही है। क्योंकि कहते हैं किसी भी चीज को माहिर करने के लिए या किसी भी चीज को में महारत हासिल करने के लिए 10,000 आवर्स की डिलिजेंट प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने 10,000 आवर्स की मेहनत कर ली तो कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो आप नहीं सीख पाएंगे। आप उस चीज का टैलेंट प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च हैज प्रूव्ड इट। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम वो उतना टाइम नहीं दे पाते, टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पीपल, अगर कोई किसी चीज में बहुत अच्छा है, अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है या कम्युनिकेशन में अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा है, तो इसका मतलब उनको पैदाइशी सब अच्छा है, इसीलिए वो अच्छे हैं। सही बात है कि उनके पास नेचुरल एबिलिटी है इसलिए वो अच्छे हैं? आप फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि उसके पास नेचुरल एबिलिटी है, बल्कि वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि people who are good at a particular skill have spent a lot of time practicing that skill. उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है। ट्रू फॉर फोर्थ, उनके पास बहुत मेहनत है रिगार्डलेस ऑफ नेचुरल एबिलिटी। तो बिल्कुल सही बोला। तो अब आपने सारे जवाब आपके बिल्कुल करेक्ट है। सो देखिए, फर्स्ट वाला फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है। तो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या समझने की है कि अगर मुझे कहीं लगता है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, तो मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं उसको महारत हासिल कर सकूं। क्योंकि अभी सबने आंसर किया है कि जो हमारे पास टैलेंट, ऐसा नहीं है कि जो इनहेरेंट टैलेंट है हमको उसी के साथ रहना है, हम उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा माइंडसेट, ये हमने 4 मैंने सॉल्यूशंस के लिए दिए थे, माइंडसेट, प्रोएक्टिवनेस, और किसी ने बाकी दोनों याद है आपको? चलिए मैं एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम माइंडसेट पे आए। तो ये हमारा माइंडसेट दर्शाता है। तो माइंडसेट दो टाइप के होते हैं। या तो मेरा फिक्स्ड माइंडसेट है कि कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, और या फिर मेरा ग्रोथ माइंडसेट है जहां पे आई एम रेडी टू चेंज। सो व्हेन आई एम रेडी टू चेंज, देन एक्चुअली थिंग्स विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग। तो टू माइंडसेट्स होते हैं ये। अब देखिए, एक चैलेंज तो है टाइम मैनेजमेंट का, एक ऑब्स्टिकल भी है टाइम मैनेजमेंट के। तो जो आप यहाँ पे रेड में देख रहे हैं ना, ये सारे हमारे लिए प्रॉब्लम एरियाज बन जाते हैं कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे कर पाएंगे। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे उनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़ा एक इश्यू है, ऑब्स्टिकल्स है, एफर्ट कैसे डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, वी कैन अवॉइड चैलेंजेस, वी कैन गिव अप इजीली, we will see एफर्ट करने से फायदा ही क्या है, इट इज ऑल यूजलेस। इग्नोर यूजफुल नेगेटिव फीडबैक को, इग्नोर करो। कोई कुछ मुझे बोल रहा है तो इग्नोर करो, नो पॉइंट इन लिसनिंग, क्रिटिसिज्म मुझे सुनना ही नहीं है। और अगर कोई कर रहा है सक्सेसफुली तो हम कहेंगे इनके पास तो पहले से ही एबिलिटी थी, इन्होंने तो पहले ही कर लिया। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट का सिम्टम्स है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होंगे वो एम्ब्रेस करेंगे चैलेंजेस को। यस, आई नो दैट इट्स अ चैलेंज, आई कैन सी दिस, बट आई कैन परसिस्ट, मैं इस पर फिर भी अपना काम आगे बढ़ा सकती हूँ। और ये जो एफर्ट है ये मुझे किसी ना किसी दिशा में आगे ले जा रहे हैं। क्रिटिसिज्म मुझे कुछ सिखा रहा है और इससे मुझे अपनी ही ग्रोथ पे काम करने का मौका मिल रहा है। सो इट इज अ ग्रोथ माइंडसेट। और ये हमारे लिए एज एजुकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी क्लास में भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखेंगे कि मेनी ऑफ देम आर कमिंग विद अ फिक्स्ड माइंडसेट।
You are telling them many things, but they are not ready to listen. They are not ready to take criticism. They are not ready to put in efforts. क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, हम जैसे हैं वैसे हैं. पर वो तो सत्य नहीं है, बिकॉज वी हैव जस्ट डन दैट क्विज एंड क्वेश्चन आंसर्स, जहां पे थियोरेटिकली हमने सब सही आंसर्स दिए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देन इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. तो इम्पोर्टेंट थिंग आज की 21st सेंचुरी एजुकेटर के लिए हमें सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना है. And from fixed, we have to adopt growth mindset. Okay, so that is the first point. कि अगर हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं है कि टाइम को हम रोक सके. समय को तो कोई नहीं रोक सकता. अगर 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो दुनिया भर के लिए यूनिवर्सली समय तो वही है. तो हम समय को मैनेज करने से अच्छा है कि वी खुद को वी मैनेज आवरसेल्व्स. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन दोस 2 hours or 5 hours or 10 hours, that is actually my managing myself. Are we understanding? Are we getting this? What are we talking about? ये ग्रोथ Yes, ma'am. माइंडसेट, हाँ, माइंडसेट वाला क्लियर हुआ Yes. है ना. तो अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ. देखिए ये बहुत बहुत इजी है ये कहना कि माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, बट एग्जैक्टली माइंडसेट क्या होता है? ये एक फिक्स माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, और हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ काम करना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपको एक्टिव से आपकी क्या डेफिनेशन है? दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी एक्टिव, ही इज एक्टिव. एनीबॉडी? नेक्स्ट हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं, एक्टिव पे. तो हम कहते हैं ना कि मैं पूरा दिन, मेरा बहुत काम चल रहा है, आई एम वेरी एक्टिव थ्रू आउट द डे, आई एम डूइंग सो मच एंड क्विक. ओके, यस. पर आपको पता है एक्टिव भी डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं. एक्टिव लोग 2 टाइप के होते हैं. किसी ने प्रोएक्टिव का नाम सुना है? Yes, ma'am. प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का नाम सुना है किसी ने? Yes, ma'am. हाँ जी, एनर्जेटिक. हाँ, पर प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, यस. तो कोई बता सकता है हु इज अ प्रोएक्टिव पर्सन? जो किसी काम के लिए पहले अपना प्लानिंग करके रखता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. प्रोएक्टिव लोग होते हैं तो 2 टाइप के लोग होते हैं. अब ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप बच्चों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है. लोग 2 तरह के होते हैं, या तो प्रोएक्टिव माने जो समय से पहले एक्शन ले ले, या फिर रिएक्टिव, काम तो हो गया बट उसके बाद वो रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट वाले रिएक्टिव होते हैं. तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है. एक्टिव तो दोनों है, रिएक्टिव पीपल आर आल्सो रिएक्टिंग, सो दे से दैट दे आर एक्टिव. और एक थर्ड कैटेगरी है इनएक्टिव. तो वो तो inactive people तो will not do things on time, they will get stressed and they will crib and complain and they will be most most tense. तो वो तो inactive तो है ही नहीं. हम तो proactive है कि reactive है, उसका हमको differentiation समझना है. तो proactive क्या होता है कि जैसे हम बहुत बार हम क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट तो हमेशा ही चलता रहता है ना. हमने कुछ कॉज एंड इफेक्ट में क्या चल रहा है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, फिर उसका कुछ कारण बन रहा है, फिर उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है. तो हम कई बार काम हो गया उसके इफेक्ट पे रोते हैं क्योंकि काम पे हमारा कंट्रोल ही नहीं था. Proactiveness is all about controlling the causes that are being created. You become the cause. You become the reason who is putting things into motion.
ताकि बाद में इफेक्ट पे हमें रोना ना पड़े या क्रिटिसाइज ना करना पड़े या कंप्लेन ना करना पड़े। तो कॉज बनना is proactiveness. So what do proactive people do? तो अगर मैं अपने टाइम के लिए प्रोएक्टिवली प्लान नहीं करूंगी तो अदर पीपल विल प्लान बिफोर मी और मुझे उनके प्लान के चलना पड़ेगा and they will be reacting to what they have planned for me, which is a very sorry situation. तो मुझे क्या चाहिए, मैं पहले फटाफट प्लान कर लूं। जो लोग प्रोएक्टिव होंगे वो पहले प्लान करके they will be in control of the situation. So let us see what is proactive and what is reactive. Do you want to know about it? प्रोएक्टिवनेस के बारे में थोड़ा सा और रिएक्टिव के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं? यस मैम। जानना चाहते हैं ना? तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं कि जिन पे उन वहां एफर्ट्स फोकस करेंगे जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? Responsibility is the ability to respond, है ना? कोई भी परिस्थिति हुई तो उसमें हम कहते हैं कि भाई ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है या इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, उस पे रिएक्ट करने की, उस पे एक्शन लेने की। तो वो अपने लिए अपनी एबिलिटी के लिए मानते हैं कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना? तो वो अपने एफर्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो ये भी समझ रहे हैं कि दे आर द कॉजेज फॉर थिंग्स हैपनिंग, तो दे मेक थिंग्स हैपन, तो दे आर द डूअर्स, है ना? और वो जब भी हो गए तो लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, they are acknowledging the mistakes and they are saying okay it's a lesson learned for me. कितने सारे आजकल हम सुनते हैं entrepreneurs के बारे में भी, and I was watching a video or a podcast, I was listening to a podcast, मुझे बोला आपने अपनी फेलियर से क्या सीखा? The person said no, but where are the failures? Every failure is a learning. So I will just say that I learned 5 different ways to do things and finally this one worked for me. So they learn from their failures, they learn from their mistakes, they learn from their experiences. So they are the people who are out and finding solutions for so many things, as we can see all around us. And we can also be proactive when we are taking control of things in our own personal space. तो बहुत ज्यादा बाहर जाने के तो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोएक्टिवली चीजों को हैंडल करते हैं तो यू विल सी है वो है रिएक्टिव। सो रिएक्टिव पीपल व्हाट विल दे डू, बिकॉज दे आर द कॉज, वो उन्होंने कुछ तो दे रिएक्ट टू लोगों का रिएक्शन है प्रोएक्टिव पीपल, और जो लोग आगे बढ़ के एक्सक्यूज मी एक्शन मैम, ले रहे दिव्या हैं मैडम। वो प्रोएक्टिव पीपल। हाँ जी बोलिए। मैडम आवाज यस, ना बीच बीच में ब्रेक हो रही है, तो हम वीडियो ऑफ रख के देखते हैं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, आई जस्ट बाकी पार्टिसिपेंट को भी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, कि मेरे तरफ ही कुछ इश्यू? नाही मॅडम हो मॅडम, कट रही आवाज. ब्रेक होतो. बरं ब्रेक ठीक आहे, मॅडमला मी व्हिडिओ ऑफ ठेवायला सांगते, मग बघूया वॉइस क्लियर होईल. यस हाँ मैडम, हाँ, आप वीडियो ऑफ करके देखिए. मैं ऑफ कर देती हूँ। यस, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट स्विच ऑफ द वीडियो।
वीडियो सेटिंग्स मैडम पे। मैं यहाँ से कर दूं क्योंकि आपको स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा, मैं यहाँ से कर दूं? हाँ 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 हाँ, आप कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। यस यस, मैडम, मैंने कर दिया, यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके। सो वेयर वर वी? स्लाइड शो, these are I can't see. मैडम नीचे में है, फुटर में देखिए आप, या तो फिर फ्रॉम करंट स्लाइड भी आ जाएगा। Just a minute, just a minute. ओ, ये कैप्शंस आ रहे हैं इसमें। हाँ हाँ, वो वेबएक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहता है ऊपर में। मैडम F5 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, अच्छा, F5। ओके ओके, हम जस्ट क्योंकि ऊपर शायद वो आपको हेडिंग नहीं दिख रहे होंगे। हो रहा है मैम? हेलो हेलो मैडम, आवाज आ रही है मेरी? मे बी हैंग हो गया होगा। वेट। हाँ फ्रेंड्स प्लीज वेट करा, हाँ मैडम ने मीटिंग लीव के लिए रिजॉइन करता था। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ यस मैडम, नाउ यू आर ऑडिबल। Okay, okay. I'll just stop the video and मैडम now, यू आर, यस काइंडली शेयर द स्क्रीन। yes, I'll just share the screen. Is the screen visible? नॉट येट मैम। Mm, I'm sharing the screen. Is it visible now? मैडम मुझे तो नहीं, पार्टिसिपेंट आपको दिख रहा है क्या? आई एम नॉट एबल टू सी। नहीं मैडम। नो मैडम। Acha, I'll just see. स्टॉप Me शेयरिंग what's करके फिर से करके देखिए।
I don't know why it's not sharing. यहाँ से तो मुझे दिखा रहा है शेयर, बट मैडम फिर स्टॉप शेयर कर लीजिए एक बार एंड रीशेयर करिए, स्टॉप क्योंकि हम शेयरिंग। हाँ ऊपर ऊपर के साइड में अपने हेडर वाले साइड में होगा, स्टॉप करके ऑरेंज कलर की स्ट्रिप होगी। एक मिनट, हाँ मैं जस्ट अ मिनट, मेरे तरफ से एक बार शेयरिंग निकाल लेती हूँ आपके तरफ का। अभी मैं मैडम आपको फिर से प्रेजेंटर बना रही हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करिए। अच्छा, अभी ट्राई करके देखिए मैम। ट्राई करा मैंने, पर वो शेयर नहीं हो रहा है। यहाँ से कनेक्टेड भी मैंने देखा, ये शेयर शेयर पे मतलब क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है मैम? शेयर पे शेयर कंटेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। आई ट्राई दैट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। हाँ, सो ये तो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी दिख रहा है, बट शेयर नहीं हो रहा है। डिसेबल है क्या मैडम शेयर का ऑप्शन, ऐसा कुछ है? एक बार नहीं ना नहीं, मैडम, एक ऐसे बार हाँ, एक बार क्या करते हैं, एक बार मीटिंग लीव करके रीजॉइन करिए, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।